کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. جو اگر میں ویسے خریدتا تو کافی مجھے ایکسپینسو ملتی, اور وہاں سے مجھے فری آف کاسٹ میں نے وہ ساری اٹھائیں, اور الحمدللہ 2016 سے لے کے ابھی تک تقریباً ساری احادیث جتنے بھی اماموں کی ہیں وہ میں نے مطلب ان کی ریوائز ہو رہی ہے میری ماشاءاللہ. تو وہاں پر جب میں گیا ہوں, وہاں پر جب میں نے شب جمعہ کے اندر نماز رفع دین کے ساتھ پڑھی تو وہ ان کے لیے تھوڑا شاکنگ تھا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یہ تم مطلب وہابی بن گئے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو. تو ان سے میرے ایک دوست تھے جو مجھے اس چیز سے بڑے غصے ہوئے کہ یار تم نے کیوں چھوڑ دیا مطلب دیوبند اور تم گمراہ ہو گئے ہو. تو وہ ایک دن جو ہے نا وہ لے کر آ گئے مفتی صاحب کو ہماری مسجد میں. ہمارا حلقہ جو ہے حلقہ نمبر 1 نواب مسجد آپ کے لیے لے کے آ گئے جو ویسے جی میرے لیے لے کر آ گئے کہ مطلب تمہیں غلط ثابت کرنا. اور انہوں نے تقریباً 2 سے 3 عدد جو ہے نا وہ بوریاں وہ آ کے ٹیبل پہ انہوں نے مطلب خالی کی کتابوں کی. اچھا, تو میں بہت جو ہے نا وہ میرے جو دوست تھے وہ یہ کون سی بوریاں تھی؟ یہ وہی تو نہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب بھی کہہ رہے تھے نا بورے لے کے, یہ وہی بورے ہیں؟ بالکل وہی جو میرے خیال سے اسٹار چورنگی کے اوپر جو مفتی طارق مسعود صاحب لے کر آئے تھے, یہ وہی بوریاں تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام عماد شیخ. سوری, عماد شیخ. عماد عماد الدین. عماد الدین. عماد الدین بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ جی حیدرآباد. حیدرآباد, ماشاءاللہ. لمبا سفر جی. کب شروع کیا؟ سر سفر تک 2 دن پہلے شروع کیا تھا. اچھا. اور آج الحمدللہ اپنے استاد محترم کے پاس ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے ماشاءاللہ. کوئی اور بھی کام تھا یا اسپیشلی یہی کام تھا؟ اسپیشل. چلے اللہ کے لیے نکلے اسپیشلی, اس کا مطلب تو یہ ہوا کیونکہ جن حساب سے جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. اچھا جی, اکیلے نکلے؟ جی جی ہاں اکیلے, ٹھیک ہو گیا. رات کو ادھر پہنچے یا صبح؟ صبح, ٹھیک ہو گیا. تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ تھکاوٹ بالکل بھی نہیں. اچھا, یہ نہ ہو ادھر درس چل رہا اور آپ سو رہے ہو. جن صاحب کہتے ہیں جو دور سے لوگ آتے ہیں نا وہ کوشش کرے کہ ایک رات پہلے آ جائے. رات کو جیل میں بڑے سستے ہوٹل مل جاتے ہیں, جی روم لیں اور آرام سے ریسٹ کریں تاکہ فریش اگلے دن آئیں تو آپ سنتے سکیں درس. چلے آج پھر دیکھتے ہیں آپ سوتے تو نہیں ہیں. اچھا بھیا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو آپ کا فرقہ تھا وہ کیا تھا؟ سر تھوڑا میرے استاد محترم کے ساتھ جیسا ملتا جلتا ہی تھا. وہ کیا تھا؟ تو پہلے میرے دوست تھے اہل تشیع, ان کے ساتھ وقت گزارا. ہاں ہاں. تو ایسا لگتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہل بیت کے قریب ہے. گھر والے کیا تھے؟ مطلب مکس تھا, جس سے آپ کیسے حرفن مولا, مطلب میلاد بھی ہے تو مجلس بھی ہے. یہ پھر بریلوی سائڈ جاتی ہے نا؟ جی ہاں ہاں, یہ بریلوی سائڈ جاتی ہے. میلاد اور مجلس اس طرح کے سارے کام وہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ نیگیٹو تھا, پازیٹیو تھا؟ وہ کیا سر وہ ایسے ہوا کہ 2016 کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ یار میں چیک کروں گی جو میرے دوست رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اچھا. میرے اہل الحدیث دوست, تو وہ کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ کیونکہ ہم اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا ہاتھ اسے عوام میں اٹھا رہے ہو. تو میں نے جب وہ نماز چیک کیا وہاں پر, تو جیسے میں نے یوٹیوب پہ رفع دین کے نام سے نماز کے نام سے چیک کیا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ پر آ رہے تھے ان کے ویڈیوز. تو پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ ایک انجینئر ہے, ان کا تو کوئی مطلب ان کا کیا کام ہے کہ یہ بتا رہے ہیں. پھر میں بس بار بار جب چیک کیا تو انہیں کا ہی جو ہے وہ ویڈیوز آ رہی تھی. تو میں نے ان کو کھولا, چیک کیا, اور فرسٹ ٹائم جب میں نے ان کو چیک کیا تو مطلب میرے لیے شاکنگ تھا کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ احادیث مبارکہ ریفرنس کے ساتھ انہوں نے بیان کی. اور انہی کی وجہ سے الحمدللہ پھر مجھے اپنے وہ سائٹ سے ahlsunnat.com سے میں نے وہ تمام احادیث مبارکہ جو اگر میں ویسے خریدتا تو کافی مجھے ایکسپینسو ملتی, اور وہاں سے مجھے فری آف کاسٹ میں نے وہ ساری اٹھائیں. اور الحمدللہ
2016 से लेकर अभी तक तकरीबन सारी अहादीस जितने भी इमामों की हैं वो मैंने मतलब उनकी रिवाइज़ हो रही है मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इस तरीके से इंजीनियर साहब का जो है वो तारुफ हुआ और मेरे उस्ताद मोहतरम है वो पहले उस्ताद वही हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपके उस्ताद मोहतरम तो बन गए, लेकिन जब आपने उनको सुनना शुरू किया था तो फिर घर वालों का क्या स्टेटस था? कोई रिएक्ट किया किसी ने? कोई कज़न, अम्मी, वालदा, फादर, कुछ भी, कोई अंकल? घर वालों की तरफ से तो इतना नहीं था क्योंकि फिर मैं उस टाइम पे देवबंद जमात के साथ तकरीबन 2004 से लेके मुंसलिक था। सही है। और जमात वगैरह में भी जाता था। तो मैंने जब हमारा मरकज़ है उधर मस्जिद नूर हैदराबाद के अंदर देवबंद का पड़ा, तो वहाँ पर जब मैं गया, मैं वहाँ पर जब मैंने शबी जुमा के अंदर नमाज रफ़ायदैन के साथ पढ़ी तो वो उनके लिए थोड़ा शॉकिंग था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये तुम मतलब वहाबी बन गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो वैसे नमाज़ पढ़ रहा हूँ जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। फिर उस तरह से वहाँ पर एक मेरे बहुत अच्छे काबिल एहतराम दोस्त भी हैं जो आलिम का कोर्स करके आए हैं, अब्दुल्ला मंगसी साहब, वो वहाँ पे दर्स भी देते हैं, बयान भी करते हैं शब जुमा पे। फिर मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो मैंने फिर उनसे कहा कि अब्दुल्ला साहब, मैं जब से मैंने बुखारी मुस्लिम पढ़ी है तो मैं तो परेशान हो गया हूँ कि मेरी नमाज़ें जो मैंने 32 साल की मेरी नमाज़ें हैं वो सारी नमाज़ें सही हैं या गलत है? तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ ऐसा? क्या ना बुखारी मुस्लिम में तो वो नमाज का तरीका है ही नहीं जो हम पढ़ते हैं, और बुखारी मुस्लिम में तो जो अहलुल हदीस का तरीका है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको उसमें से निकाल के दूंगा बुखारी मुस्लिम। तो तकरीबन एक इस तरीके से एक हफ़्ता गुजर गया तो मतलब वो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उनकी तरफ से यही जवाब आया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो वैसे नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसलिए हम वैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ये तो कोई दलील नहीं हुई। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो है ना और मैं मजबूत होता गया कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है और दलील से बात नहीं कर। तो इस तरीके से मतलब बस ज़्यादा कोई इंसिस्ट नहीं हुआ मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं जो आपने मिला देवबंदियों से जी सही हो गया। और घर वालों को भी बताया नमाज का तरीका, ये दावत दी? जी बिल्कुल। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर, मेरी वाइफ, मेरी जो है वालदा, और वैसे नमाज पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नत तरीका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस दावत में जब से आप जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी दुख भरी तकलीफ़ या कोई कहानी ऐसी जो शेयर करना चाहें? क्योंकि दीन के काम में आपको पता है तकलीफ़ें तो उठानी पड़ती हैं। सर ऐसा कोई दुख भरा तो ऐसी कोई वाक़या नहीं, हाँ बल्कि एक हमारे हैदराबाद के अंदर मौलाना अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब हैं, वो काफ़ी मतलब यूट्यूब पे भी आते हैं, मुनाजरे भी करते हैं। तो उनको एक मेरे दोस्त हैं हमारे, जी हाँ, देवबंद मोहम्मती इस तरीके से मेरे शायद, हाँ। तो उनसे मेरे एक दोस्त थे जो मुझे इस चीज़ से बड़े गुस्से हुए कि यार तुमने क्यों छोड़ दिया मतलब देवबंद और तुम गुमराह हो गए हो। तो वो एक दिन जो है ना वो लेकर आ गए मुफ्ती साहब को हमारी मस्जिद में। हमारा हल्का जो है हल्का नंबर 1 नवाब मस्जिद, आपके लिए लेके आ गए? जो वैसे जी मेरे लिए लेकर आ गए कि मतलब तुम्हें गलत साबित करना है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने उनको कहा कि यार मैं तो जो हूँ ना एक स्टूडेंट हूँ और मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं, मैं कैसे बात करूँगा एक आलिम के साथ, एक मुफ्ती के साथ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बस तुम्हें बैठना है और तुम गलत हो, मैं ये साबित करूँगा है। तो वो बस फिर वो बैठे मेरे साथ। तो मैंने उन मुफ्ती साहब को कहा, अच्छा मेरे जितने भी कॉलीग्स, मेरे से छोटे मेरे से बड़े जितने भी थे, तकरीबन हमारा जो है ना वो 50-60 जन है, मतलब हमारे मतलब बुजुर्ग को छोटे बड़े, वो सारे उस तरफ हो गए जो मेरे साथ थे, और मैं अकेला था। और मेरे साथ एक दूसरे मेरे दोस्त थे, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के पास। तो वो थे, वो थोड़े हैंडीकैप भी हैं, इसरार भाई नाम है उनका, इसरार अंसारी साहब। तो हम उधर बैठे हुए थे। तो मैं जब वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे हैं, तबीयत ठीक है। मुलाकात की और उन्होंने तकरीबन 2 से 3 अदद जो है ना वो बोरियाँ वो आके टेबल पे उन्होंने मतलब खाली की किताबों की। अच्छा। तो मैं बहुत जो है ना वो मेरे जो दोस्त थे वो, ये कौन सी बोरियां थी? ये वही तो नहीं जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी कह रहे थे ना बोरे लेके, ये वही बोरे हैं? बिल्कुल वही जो मेरे ख्याल से स्टार चौरंगी के ऊपर जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब लेकर आए थे, ये वही बोरियां थी।
اچھا یہ وہی उन्होंने बोरियां खोली नहीं थी, इन्होंने खोली थी। इन्होंने खोली, अच्छा तो वो मुझे कहने लगे इशारे से कि यार ये तो 3 बोरियां हैं और हो सकता है इसमें से जो है ना वो, तो मैंने कहा अल्लाह बड़ा है। इस तरीके से फिर मैंने उनसे एक चीज़ कही कि मतलब आप आलिम हैं, आप अपनी तस्दीक भी खुद करेंगे, सही है, और मेरी जो मैं रेफरेंस दूंगा उनकी भी तस्दीक आलिम साहब आप करेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो भी यही चाहते थे कि किसी तरीके से जो है ना वो ये साबित ना हो सके इनकी। अच्छा मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास एक अपना स्मार्टफोन था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर तमाम अहादीस की बुक्स थी और मैंने स्टडी करके वो सारी ऐड करके जो है ना अलग से निकाल के रखी थी, जो है ना वो रेफरेंस जो है ना रफ़ायदैन के ऊपर। तो तकरीबन 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक उनके साथ मतलब वो बात होती रही। उनको मैंने अपने भी रेफरेंस दिए, उनके भी रेफरेंस में जो वो दे रहे थे मैं उन्हें बता रहा था कि इनमें इमाम दाऊद और इमाम तिरमिज़ी उनके जो कमेंट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ये ज़ईफ़ है। और एक हदीस थी जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस जो अक्सर ये नोट करते, तो वो उन्होंने वो हदीस दी, तो मैंने उन पर भी कहा कि देखें उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि नीचे कि ये हदीस सही मानों में दुरुस्त नहीं है, ये लंबी हदीस है। तो इस तरीके से उन्होंने कुतुब सित्ता में से भी साबित नहीं किया और 2 बजे तक बैठे रहे। आखिर में बस मैंने उनको कहा कि मुफ्ती साहब अगर आपके पास कोई सही दलील है तो आप उस आपको सामने रखें। तो बस उन्होंने बस कुछ भी नहीं किया। एंड में 4 घंटे मैच चला जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हक की जीत हुई। नहीं जीत क्या वो माने सर, वो काम है। हाँ तो मानते तो कोई ना, लड़ाई तो नहीं हुई। नहीं सर, तो फिर आपकी जीत ही हो पर गया। जितने मेरे कलीग्स बैठे हुए थे, जो जितने भी लोग, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से जो है ना वो सेटिस्फाई हुए कि नहीं अमाद एक मेरा दोस्त वो ना आलिम है ना क्या, और उन्होंने एक सवाल का सही जवाब दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है जितना भी मुफ्ती साहब को भी सलाम, शरीफुल नफ्स आदमी थे, वरना तो आपको उन्होंने उठ के ऐसे आने नहीं देना चाहिए था। वैसे करते तो इस तरह ही है ना यार ये लोग। सर वो भी काफ़ी जज्बाती हो गए थे, खड़े होकर चीखने लगे। तो इंजीनियर साहब ने हमें बताया है कि आपने चीखना नहीं है और दीन में जज्बात की कोई कदर नहीं है। ज़बरदस्त। तो मैं उनको यही कह रहा था कि मुफ्ती साहब आप ये चीख कर चिल्ला कर जो है ना जो मेरे साथ हमारे कलीग हैं आप उनको ऊपर तो धौंस दे सकते हैं, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से बैठ जाए। तो बस वो इनका आपको पता तरीका है, जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो इसी तरीके से करते हैं सर। अच्छा ये तो हो गया एक मुनाजरा, तो और भी मुनाजरे किए सर? ये एक ही मेरे लिए बहुत। हाँ यही मैं कहना चाहता है, ज़रूरत नहीं है अब इनसे करने की। वो पहले भी आपने जो है ना ब्लेंडर ही कर लिया था, शुक्र करे बच गए। आपको पता है ये लोग किधर मानते हैं यार, उनके साथ रोटी जुड़ी हुई है और वो अलामा आ गया वो आपसे हार मांझे सदके ना जाए। सर बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल ये बात वही ना, तो ये शुक्र करें बचत हो गई है। हम चुप करके साइड पर हैं, सीना बसीना अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज में, घर वाले, ये हैं बंदे जिनको दावत देनी है। सर काफ़ी मेरे दोस्त यार अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैक पे आ रहे हैं माशाल्लाह। और अच्छा उनमें एक मैं आपको बात बताता चलूँ, जो हमारे इसरार भाई थे जो यहाँ पर आ चुके हैं, अच्छा उनके साथ उन्होंने एक ज़्यादती भी की थी। ज़्यादती ये की थी कि जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी वजह से रफ़ायदैन की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, तो उनमें से हमारे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने उनको कहा कि यार देखो इसरार तुम्हारी वजह से जो है ना यहाँ पे जो है ना मामला थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप मेहरबानी करो यार इस मस्जिद में नमाज ना पढ़ो। जिस पर मैंने उनको कहा कि आपने मस्जिद क्यों छोड़ी? हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि हमने मस्जिद नहीं छोड़नी, हमने उधर पढ़नी है नमाज, मस्जिद किसी की भी नहीं। तो बहरहाल उन्होंने, वो बेचारे बड़े शरीफुल नफ्स थे, उन्होंने छोड़ दी। बहरहाल मैं वहाँ पढ़ता हूँ जब भी जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं। चलें, फर्स्ट टाइम आए हैं जी आज? जी फर्स्ट टाइम। आज इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह ताला। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।